Hello, friends. A very good evening to everyone, and welcome to Mluka IAS. Today, we have with us what is called the future of the country, that is the women empowerment. The guest for today is Kemi Garg. She's a person who is one of the most dynamic in her field. Tried into different path, coming from an average family, a good family, coming from a not that big town, but making big in her career. That is definitely very, very true. One thing that I have heard about her from n number of people is that her commitment and her dedication towards her work. Whatever work she has chosen, she has given her 100%. First year she was there into UPSC, moved into different fields, tried various things, came successful. And then, other than UPSC, she tried to have a career that was different from UPSC. For example, in the field of digital marketing. Friends, one thing is for very, very sure. Digital marketing is not an arena, at least for the people who are preparing for UPSC. और एकदम बाहर आके business start करना, starting entirely a new company by the name Nurture Ideas, it's a very big thing. And being a girl, being an independent, she tried to, and she was successful in establishing her name in the industry also in a very short span of time. The single reason that she was successful, and she's very successful, is the reason that her commitment and dedication. As far as I know her, you can give her a call even at 10 p.m. You can wake up early in the morning, even at 6 a.m. कि कैमी ये मेरा काम है ये आप करवा के दो. And friends, I can assure you, such people, having such people around you, can help take your business to new heights, definitely. So let me introduce Kemi Garg, and she's the founder of a company that is becoming very successful in a very short span of time, that is Nurture Ideas. A very good evening, Kemi. थैंक यू सो मच सर फॉर लवली इंट्रोडक्शन. मतलब आपने तो क्या ही बोलूं मैं It अब. is just the truth that I have said. थैंक यू सो मच सर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए एंड होपफुली नर्चर आइडिया इतनी सक्सेस अचीव करेगा कुछ टाइम में. नहीं डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गो एट अ वेरी हाई. और फ्रेंड्स, मैंने तो कई बार बोला है भी मेरे को भी साथ में मिला लो अपने काम में. चलो सीरियसली कई कई बार इनको बोला है कि मेरे को भी यार साथ में मिलाओ. चलो ठीक है. So let's give me certain questions that the viewers who are there joining us, they want to listen. What are your views on this regard? श्योर सर. Firstly, from UPSC preparation to digital marketing, एक बिल्कुल ही different field हो जाता है. How has your journey been for example so far in this field with both? एक इधर से आप इधर करके एकदम शिफ्ट कर गए, तो जर्नी कैसी लगी आपको? सर अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो वो पहले शुरू से ही फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द माय लाइक 11th स्टैंडर्ड काफी इंटरेस्टिंग रही है. मैंने आई गेस कोई फील्ड नहीं होगा कि जो मैंने ट्राई नहीं किया, और यही रीजन था शायद मैं डिजिटल मार्केटिंग में अब नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ जो मैंने किया है वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट्स में कर चुकी हूँ. एंड सारे मैंने मेरी एक चीज रहती है सर कि कुछ भी आप करो पहले उसके बारे में रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी होता है. इट शुडंट बी लाइक अगर सिविल सर्विसेज छोड़ा है तो आपने अगर कोई पाथ चूज करना है तो आपने जस्ट जंप कर लिया. पहले आप अपनी रिसर्च वर्क करो कि अगर मैं ये चीज करते हैं तो मैं अडेप्ट कर लूंगा उस स्टार्ट को, या सेकेंडली आप उतना कमिटमेंट दे सकते हो, क्योंकि कमिटमेंट के बिना जैसे आपने बोला कि आपको लगता है कि मैं मतलब मेरे काम के लिए कमिटमेंट या डेडिकेशन है, तो वही एक रीजन है शायद मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में अपना काम कर पा रही हूँ. अदरवाइज यूपीएससी ने ये चीज तो बहुत अच्छे सिखाई है कि नेवर गिव अप. कुछ भी हो जाए आप कभी कुछ हिम्मत हार ही नहीं सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है. तो जैसे मैं अगर अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने 11th स्टैंडर्ड जैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट, उसके बाद मैंने भी लाइक अदर्स मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट फैमिली वो सेड कि नहीं आप कंप्यूटर्स करो, कंप्यूटर्स का स्कोप अच्छा है. तो मैंने बीसीए किया कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो मेरी ग्रेजुएशन रही है कंप्यूटर एप्लीकेशन में. एंड उसके बाद जैसे वही नॉर्मल स्टूडेंट्स का आता है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ. तो बरनाला में
उस ईयर पर्टिकुलर 4 सिविल सर्विसेज में आए थे पर्सन, तो उनकी न्यूज़ इतनी थी कि वायरल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, तो मुझे एक चीज़ आई कि यार मुझे भी मेरा भी नाम चाहिए वहाँ पे, मुझे फेम चाहिए, मुझे आइडेंटिटी चाहिए। I think जैसे अगर Ish was one of the person who was there. Ish Bansal or Ish Singhal, something like that. He was the आप doctor. कंचन गर्ग, गगनदीप, तो ये 4 पीपल थे और उनकी वजह से ही उस टाइम पे जो आए, तो उनकी वजह से मुझे एक चीज़ थी कि मुझे फेम आइडेंटिटी चाहिए, अपना नेम चाहिए, बट मुझे वो चीज़ ही बस उतना ही पता था। अभी आप किसी भी सिविल सर्विसेज के पर्सन को पूछोगे, वो बोलेगा मेरे को नेशन सर्व करना है, तो मेरे दिमाग में तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे। वही उसके साथ आइडेंटिटी उस बनाने के चक्कर में ही मैंने अपने पापा को बोला घर पे जाके, मैंने कहा पापा मुझे तो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो हम लोग करते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करती हूँ मैं, स्किप कर देती हूँ। तो मेरी काउंसलिंग हुई काफ़ी है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए आपको लाइक अदर्स, बट आई सेड कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो वही जाना है। तो उसके बाद मैंने किया, मैंने चंडीगढ़ एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। बट आपको अगर दिल्ली एंड चंडीगढ़ के कंपैरिजन में देखोगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत डिफरेंस है। आप दिल्ली की एजुकेशन को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो वही सेटिस्फेक्शन आई नहीं, तो मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया। तो दिल्ली में भी सर पता क्या होता है कि आपके पास, हम लोग जैसे अगर छोटे शहर से आते हैं तो हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे और गूगल पे क्या होता है, वही 2-3 नेम आते हैं, पॉपअप होते हैं और उसी में से हम लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं। मैंने भी सर्च की अपनी कि मुझे मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, पर प्रॉब्लम क्या आई कि मेरे पास वही 2-3 ऑप्शन थी, उसके बिना मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और सिविल सर्विसेज में एक चीज रहती है, जैसे आप कहीं पे भी अगर ज्वाइन करते हो तो आपको वन टाइम में ही पेमेंट करनी होती है। तो वही मुझे लगता है मोस्टली जो मीडियम फैमिली से आते हैं स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको वन टाइम पेमेंट करनी होती है, तो उनको एक बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, उसके बाद बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है। बट थैंकफुली उस टाइम पे मैंने, मतलब मुझे जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था कि इनका कुछ मतलब ठीक चल रहा है, बट मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने कि ठीक है चलो, बट मेरा टाइम ज़्यादा प्रीशियस है, तो मैंने बीच में कोचिंग छोड़ दी वहाँ पे। एंड आई फाउंड समवन कि जिन्होंने मुझे एक्चुअली में गाइड किया, हेल्प आउट किया मेरे को सारी जर्नी में, मेरी सारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन उसके बाद मैंने वहीं पे कंटिन्यू करी। उसके बाद मैंने उनके पास जॉब स्टार्ट की सर के पास, तो ऐसे मेरी जॉब में ज्वाइनिंग हुई। बट फिर भी जॉब में आने के बाद भी मैंने मोर देन 3 ईयर सिविल कंटेंट राइटर की जॉब की है, लाइक टॉप मोस्ट जो भी बोल सकते हो आप सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशंस। बट उसके बाद भी क्या होता है कि आपको जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, आपके आप फ्रेंड्स को देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा, जब किसी का रिजल्ट आता है ना, तो एक चीज दिमाग में आती है, यार मैं भी वो चीज बन सकता था। और वो वहां पे क्या होता है, क्योंकि इतनी उनको फेम मिलता है उस टाइम पे, नाम मिलता है, तो वही एक रीजन था मेरे दिमाग में जो स्टार्टिंग से चल रहा था। और वही चीज शायद मुझे सोने भी नहीं देती थी कभी, क्योंकि आपको वो पता होता है कि यार मैंने वो चीज अचीव नहीं करी। तो जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आती होगी, मुझे लगता है फैमिली में बोलते होंगे पेरेंट्स की, बेटा आप एसएससी की तैयारी कर लो, बेटा आप बैंक की तैयारी कर लो, क्योंकि आप तो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में, अगर मैं एक चीज बोलूँ, हाँ नो डाउट आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन करके बहुत कुछ सीख लेते हो, बट दोनों की प्रिपरेशन डिफरेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है और पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि बैंकिंग, एसएससी एंड आईएएस तीनों डिफरेंट हैं। आप एक पर्सन को ये नहीं बोल सकते हो कि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईएएस भी एसएससी भी क्लियर कर लो सेम टाइम पे। वही चीज होती है, मुझे लगता है काफी स्टूडेंट जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी एजुकेशन से। और मैंने मोर देन 3 इयर्स कंटेंट राइटर की जॉब की। उसके बाद मैंने कि कुछ ये तो नहीं चल रहा, अभी लॉन्ग टर्म में तो कुछ सोचना है, तो हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो वही ऑप्शन मैंने सर्च वर्क किया अपना, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आई कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन। तो बट मुझे एक चीज पता थी कि जैसे सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि आप इतना टाइम लगा चुके होते हो, मैंने भी काफी इयर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके बाद मुझे ग्रोथ चाहिए, तो जल्दी चाहिए अब, क्योंकि मुझे बाकियों के पेज पे भी आना है। मैं ये नहीं वेट कर सकती कि मुझे 10 इयर्स के बेसिस पे 10 इयर्स लग जाएंगे, उसके बाद मुझे ग्रोथ चाहिए। और वही एक रीजन था शायद डिजिटल मार्केटिंग मेरी स्टार्ट हुई। बट उसमें भी मैंने ये नहीं था कि मैंने अपने आप को बहुत फोर्सफुली किया, शायद डेस्टिनी में वो चीज थी, तो ऑटोमेटिक वो चीजें वैसे ही बनती गई जैसे होनी चाहिए थी।
तो मैंने अभी लास्ट मंथ ही नर्चर आइडिया स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने 6 मंथ डिजिटल मार्केटिंग में जॉब भी की है, जिसमें भी वही एक रीजन था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे अपना आइडेंटिटी चाहिए थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो मैंने उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से 1 वीक पहले मैंने रिजाइन किया जॉब से। एंड लॉकडाउन में जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपने जॉब छोड़ दी। आई वाज लाइक नहीं चलो ठीक है, अब ले लिया है तो उस टाइम पे मेरे पास, बट फिर भी जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था, मेरे घर पे किसी को नहीं पता। एंड आफ्टर ये बात घर वाले सुन रहे होंगे। श्योर मेरे पापा मम्मा सुन रहे हैं। बट सर होता क्या है कि आपको ना समझ में नहीं आता, मुझे उस टाइम पे मेरे पास 2 जॉब की ऑफर्स थी इन हैंड। तो मैंने यही सोचा कि चलो यहाँ पे नहीं कुछ होगा तो मैं जॉब मेरे पास है, मैं ये ज्वाइन कर लूंगी, बट हाँ पर उससे पहले एक्सप्लोर कर लूँ, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये चीज नहीं किया। नर्चर आइडिया था मेरे माइंड में कि मुझे नर्चर आइडिया करना है, बट आई वॉज नॉट मच श्योर। तो उसके लिए भी क्या होता है कि आपको कभी कभी आपको डिसीजन, एक रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, जो कि बहुत जरूरी होता है। आप इट शुडंट बी कि आप डर के हमेशा कभी रिस्क लोगे ही नहीं। जब जैसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करते होंगे, तो वो भी तो एक रिस्क लेके ही करते हैं। इतने इयर्स इन्वेस्ट करने के बाद, है ना। आपने भी आई एम श्योर रिस्क लिया था एक बार मैंने आपकी सुनी थी सर। तो रिस्क तो पार्ट होता है, अगर रिस्क नहीं लोगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में फिर रिग्रेट्स रहते हैं, और रिग्रेट्स बहुत बड़ी चीज होती है। Yeah. So friends, हाउ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। yes, one thing is very clear that the problem that she faced is a problem जो majority students face करते हैं। जब एक एवरेज शहर से, एक एवरेज फैमिली से, एक नॉर्मल, जब इतनी गाइडेंस नहीं होती है, तो एक उसी हिसाब से एन नंबर ऑफ पीपल दे फेस प्रॉब्लम। घर वाले बोलते हैं बेटा ठीक है, एक बार तेरे को पैसे दे दिए, अब तुम पढ़ो और फाइन। एंड अब 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं, कोई गारंटी नहीं है सिलेबस पूरा होगा, उसमें से कुछ आएगा कि नहीं आएगा। एंड हार्ड एंड वेरी अर्नेस्ट मनी होती है आपके पेरेंट्स की। 1.5-2 लाख रुपए के बाद बच्चे के पास खुद हिम्मत नहीं होती कि मम्मी पापा मेरे को दोबारा पैसे चाहिए, उन्होंने मेरे को चीट कर लिया एंड आई वांट अ मनी। घर वाले बोलते इतने बड़े हो गए, तुम डीसी बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें अभी भी चीट कर रहे हैं लोग। एंड दैट्स हैपनिंग विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यार। जिस तरीके से मैंने बताया था अपना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एटलीस्ट जो यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे ऑल मेजॉरिटी 99% दे आर पासिंग थ्रू दिस फेज ओनली। तो हम तो राजेंद्र नगर में कहते हैं कि चुंगी नाके हैं उधर। जैसी राजेंद्र नगर में एंट्री है, कोने पे बनी हुई है बिल्डिंग, चुंगी नाका है, नाका कटवाओगे पैसे तो आगे जाओगे। But this game will not go for long. This is for sure. People are getting aware and things are there. Many friends are joining Kemi along with us. A very good evening to everyone. It's a great session that we are having a personal experience that we are getting to learn from Kemi Gar. And it's an once a lifetime experience of UPSC, and then that experience that you gain, चाहे आप UPSC में सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे इस आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, one thing is for clear that you will definitely become a very good person in life. And the opportunities, the way, the outlook, जिस तरीके से जो आपका नजरिया होगा जिंदगी को लेके, जो आपका नजरिया होगा दुनिया को लेके, वो डिफरेंट हो जाएगा। N number of viewers who are listening to us, friends, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आए which you want to ask from Kemi, take her advice, whatever the problem that she facing, and she was able to establish herself, then definitely you are everyone can ask a question. Moving ahead, Kemi, I would like to ask another question about nurture ideas. Could you let us know a bit more about nurture ideas, that the brand you have established? सर नर्चर आइडिया इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट। आप अपने ब्रांड को, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग अपना ब्रांड शुरू कर लेते हैं, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें मार्केटिंग इसकी कैसे करनी है। आजकल अगर मैं मेजोरिटी में देखूं, अभी जैसे अगर कोविड-19 के टाइम पे काफी बिजनेस बंद हुए हैं, बट वहां पे भी कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर वो थोड़ी सी बेटर कर लेते तो शायद वो उनको अपना बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अगर बात करूँ, कुछ आईएल्स के इंस्टीट्यूट है इमिग्रेशन वाले, इमिग्रेशन सेक्टर तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि बंद हो रखा है, बट उनको अगर स्ट्रेटेजी के साथ, आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर मार्केटिंग करते हो तो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आती। और वहीं पे हम लोग आता है नर्चर आइडिया, और नर्चर आइडिया का बेसिकली काम ही वही है कि आपको अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आपको कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने मार्केटिंग करनी है।
और इट्स नॉट लाइक कि मैं ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग हेल्प नहीं करते, हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको स्ट्रेटजी बना के देते हैं, बट मेनली हमारा फोकस रहता है नर्चर आइडिया का कि ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको हेल्प किया जाए। और मेनली हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि आजकल हम लोग देखें, अगर कोरोना के टाइम पे तो सारे लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, किसी को भी देखो हाथ में फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं सारे। मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग, एड कैंपेन्स, ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने ये कुछ टाइप्स की सर्विसेज हैं जो हम लोग नर्चर आइडिया के थ्रू प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। Some questions are also coming. One question is from Self Study India. The question has come to tell me. The one first question is, what exactly the company Nurture Idea is all about? And another question is, what skills are needed for digital marketing, and how did you develop that skills? Okay. Nurture Idea, as I defined कि Nurture Idea is all about advertisement agency, जहाँ पे हम लोग किसी स्मॉल बिजनेस को या बड़े ब्रांड को हेल्प करते हैं कि उनको फर्दर ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी कैसे क्रिएट करनी है। एंड नाउ इट कम्स टू कि आपको स्किल्स क्या चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको, अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, आपके पास काफी बड़ा एज रहता है कि आप रिलेट बहुत अच्छा कर लेते हो, आपका थॉट प्रोसेस एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होता है, जो कि एक शायद नॉर्मल पर्सन का वैसा नहीं होता। सेकंड होता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स की अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल स्किल्स में हमें मेनली क्या होता है, जैसे मैंने अगर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने लिंक्डइन लर्निंग की हेल्प ली, तो मेरे पास अभी भी जैसे क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, या मेरे फ्रेंड्स में भी लोग पूछते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से शुरू करी। एक जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में ही किसी ने मुझसे बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रिपरेशन में कोर्स ज्वाइन किया, मैंने 30,000 पे किया। मैंने तो सब कुछ फ्री में किया है, आप 30,000 इज अ बिग अमाउंट, आप इतना यूपीएससी में टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, एंड कोर्स वाज फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स आप 30,000 पे कर रहे हो, 3 मंथ्स अपना टाइम इन्वेस्ट करो। मेजर इसके टाइम, आप इतना पेशेंस कहाँ पे है आप में कि आप 3 मंथ्स पेशेंस रखने के बाद देन यू विल स्टार्ट कि आप बिजनेस देखोगे अपना या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है, बेसिकली गूगल पे जाके सर्च करो पहले डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, आपको वो टर्म बहुत क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी, आप पता नहीं कर, फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि आप किसी उसको हेल्प कैसे करोगे बिजनेस को। सेकेंड इज कि आप फाइंड आउट करो कि स्किल्स क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट रिसर्च, फेसबुक एड कैंपेन, इंस्टाग्राम कैंपेन, या आप सोशल मीडिया कैंपेन्स या सोशल मीडिया प्रेजेंस, या ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, ये वाले अलग अलग सब टाइप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो आपको वन बाय वन आपको लर्न करने होते हैं। बट उसमें भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आती है कि वो क्या करते हैं कि सब कुछ एक साथ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं लर्न करना। मैंने पर्सनली क्या किया था, मुझे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट था, तो मैंने वही वहाँ पे एच लिया। सोशल मीडिया का मैंने सब कुछ सीख लिया कि मुझे फेसबुक करना है, मुझे इंस्टाग्राम करना है, मुझे लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बनानी है, वहाँ से लीड्स कैसे जनरेट करनी है। बट उनको मैंने सेकेंडली, अगर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, उनको सेकेंड साथ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाते हो। मैंने वही किया, 10 to 15 डेज लगाए मैंने, 10 to 15 डेज में ऑनलाइन लर्न करके देन आई स्टार्टेड की अपना काम, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो कोई हार्ड स्किल्स नहीं चाहिए, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें, उस बेसिस पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। That's very, very important. And some questions are also coming. One question has also come from me कि किसी student है वो गरीब हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं। So Pooja, I would like to say कि if a student is poor and a student has a BPL card, or we provide offline coaching free to that student. BPL card चाहिए आपका, below poverty line card जो बना होता है वो that's easily available, जो भी होते हैं उनके पास वो कार्ड होता है। एंड दैट स्टूडेंट जब भी ऑन लॉकडाउन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, यू विल बी गेटिंग एन यू कैन कम एंड अटेंड दोज क्लासेस ऑफलाइन, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड यू फुलफिल दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया दैट सबको तो हम नहीं ले सकते, एटलीस्ट वी विल आल्सो बी लुकिंग एट योर कैपेबिलिटीज कि आप में कैपेबिलिटीज है आईएएस के मुताबिक के नहीं है। एंड बिकॉज नहीं तो फिर हमारी लिमिटेशन समझे, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि हमें फ्री करवा। There has to be certain criteria and a certain number of seats. किसी मेडिकल में भी जाते हैं, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं आईएएस में भी जाते हैं, तो you need to have a particular limited seats. We have fixed the limited number of seats for offline students. Offline हमारा दिल्ली में ब्रांच है, हमारा
बठिंडा में ब्रांच है हमारा, फॉर एग्जांपल पुणे है, अमरावती है, ईटानगर, डिफरेंट प्लेसेस वी हैव अ ब्रांचेस, जहां पे भी आपको नियर बाई लगता है आप वहां पे कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, नॉट अ प्रॉब्लम। अदर थिंग दैट इज कमिंग, कैमी आपके लिए भी क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन हैज कम इन दिस रिगार्ड ओनली। The question that is coming from Minu, is there anything would you like to convey to the aspirants, UPSC aspirant? और similar question एक और भी आया है, a student is wanting to prepare for UPSC and wanting to have, Manik Goel wanting to have guidance from you. For UPSC or for हाँ, digital for UPSC they want, he want to prepare। मैं पर्सनली मानता हूँ जो सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा आप उन लोगों से पूछेंगे जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो आपको ज्यादा तरीके बता देंगे भी ये मत करना, तो बच जाओगे। हाँ जी करें। अगर यूपीएससी की हम लोग बात करें, मीनू का जो क्वेश्चन है वो मैं सेशन के एंड में जरूर आंसर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है वो सही टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी। एंड मानिक का जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है आप ज्यादा बेटर उनको गाइड कर सकते हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस फील्ड में हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि आप पहले अपना एरिया फाइंड आउट करो कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हो। पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस चेक करना बहुत जरूरी होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद आपका आता है आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। सपोज आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, जब तक आपको अपना एरिया नहीं पता होगा, हाउ यू कैन फाइंड आउट कि आप ये वाला सब्जेक्ट अपना फॉर्म करके आप ऑप्शनल में स्कोर करोगे। तो ऑप्शनल के लिए क्या होता है कि आप कोई ऑप्शनल आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करते हो, उनका सिलेबस चेक करते हो, देन यू विल फाइंड आउट कि आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। अब जो आपका ऑप्शनल चलेगा, तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप हर जगह पे वहाँ पे एग्जाम्पल्स फाइंड आउट ट्राई करना कि आपको एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिले और वो आप अपने ऑप्शनल में रिलेट कर पाओ, ताकि आपकी स्कोर आपकी जहाँ पे आपको कहीं पे एच मिल सके उस कोर्स में। एंड अगर हम लोग उसकी बात करें जनरल स्टडीज की, तो उस केस में तो आपके सबसे पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी होता है। जैसे अगर बेसिक्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं, जैसे मुझे लगता है आप मलुका आईएएस पे एनसीईआरटी का वो प्रोवाइड करते हो, जिस प्रोवाइड करते हो जहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो आप वो स्टूडेंट्स जिस बाय कर सकते हैं मानिक। तो वो जिस पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप फर्दर अपना कहाँ पे भी डाउट आता है, कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्टार्ट करो, उसके बाद आप सर से कनेक्ट कर सकते हो बेटर गाइडेंस के लिए। Definitely everyone is welcome at least at Muluka, yes। एंड सेकेंडली आपको इकट्ठी फी देने की जरूरत भी नहीं है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो पूरे पैसे भी हम वापस देते हैं। एंड सेकंड सबसे बेस्ट है आपका गारंटी फिल्म्स जो आपको आता है। That's very high quality hard work I mean we are doing upon that। and सबसे बड़ी बात, हमें डेली कॉल्स जो आती हैं वो ये कहती हैं सर आप गारंटी कैसे ले सकते हो। राइट सर। यार मैं सोचता हूँ कि आप उनसे पूछना भी तो आप दूसरे गारंटी क्यों नहीं ले सकते। That's वो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम, हम तो ले रहे हैं ना। एंड यहाँ तक कि वी आर इवन विलिंग टू डू अ लीगल एग्रीमेंट कि हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट कर लो, तो वी आर रेडी टू डू इट। वो हमसे पूछते हैं आप कैसे ले सकते हो, मैं उनको पूछता हूँ दूसरों से जाके पूछो कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो, मुल्का वाला तो ले रहा है। दैट शुड बी द क्वेश्चन, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। और कर भी नहीं रहा गारंटेड फिल्म्स, जो सबसे बड़ा एड पॉइंट है। पूजा, मैं वही आपको जो कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, हमसे सिर्फ बीपीएल कार्ड चाहिए, वी डू नॉट हैव, जो हमारी क्राइटेरिया रखा हुआ है एटलीस्ट वो तो सबको फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली देयर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what made you choose digital marketing as a path that you wanted to take up and you wanted to have a career in this? अगर सर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि मेरी, जैसे आपको लगता है कि कुछ आप ट्राई करते हो बट डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा होता है, तो सेम मेरे साथ हुआ। मैंने अपना सिविल सर्विसेज में दिया, मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए अभी तक, बट अभी भी मेरे अटेम्प्ट्स भी है एंड एज भी है। तो अगर कभी भी मेरा प्लान बनता है तो डेफिनेटली मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगी कि सर मुझे आप गाइड कर दो। एंड सर जैसे मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी, तो उस टाइम पे वही चीज़ दिमाग में थी कि मुझे कुछ करना है इसके बिना, मतलब कंटेंट राइटिंग इज नॉट कि मेरी डेस्टिनी में वही है या मुझे लाइफ लॉन्ग वही मैं कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो वही मेरे पास, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, मेरे पास 2 ही ऑप्शन आई। बट ग्राफिक डिजाइनिंग में
मेरा उतना नहीं था होल्ड ऑन। मैंने एक चीज रियलाइज करी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको टाइम लगता है ग्रोथ लेने में, और यूपीएससी में इतना टाइम लगाने के बाद आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता कि आप पेशेंस रख के इतना टाइम दोगे अपने करियर को, 5 इयर्स दोगे, उसके बाद आप ग्रोथ होगे। तो मैंने वही डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया लर्न करना, एंड उसके बाद मैंने जॉब फ्रीलांसिंग की कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट मैंने जॉब के लिए कॉल आया मुझे, मैंने जॉब मतलब लाइक जैसे इंटरव्यू आज हुआ और नेक्स्ट डे मेरी जॉब की हो गई स्टार्ट। तो ऐसे ही मेरे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कम्प्लीटली स्टार्ट हुई। आफ्टर आई गेस 6 मंथ मैंने जॉब की है, उसके बाद तो नर्चर आइडिया यहाँ पे है अभी। नहीं, बिल्कुल। One, Diganta, definitely you are most welcome at Muluka IAS. You can definitely join, and we'll make all the efforts that are there necessary so that you and other students are getting. Amy, moving ahead, I'd like to ask another question. How does digital marketing help the growth of different businesses? Because ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कल को आपको एक एजुकेशन वाला दे दे, सेकंड थिंग एक ज्वेलरी वाला दे दे, थर्ड थिंग एक क्लोथिंग मार्केट का दे दे, तो आप इतनी डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करोगे और कैसे उनका बिजनेस एक हाइट्स पे लेके जाओगे? ओके सर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की टर्म को डिफाइन करना चाहूंगी, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें क्या होता है, मेरे साथ जैसे पर्सनली प्रॉब्लम आई कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, आई एम नॉट लाइक सेल्स सर्विसेज। तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती हूँ, बट आई एम नॉट लाइक कि मैं आपको लीड्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट मेरी वो गारंटी नहीं है कि लीड्स आपको कन्वर्ट भी मैं ही करके दूंगी कॉल्स। तो मेरे साथ ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम इसी वजह से आई क्योंकि क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लियर नहीं थे। तो डिजिटल मार्केटिंग पहले तो हम उस टर्म को समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केटिंग का ही एक कॉम्पोनेंट है, बट डिजिटल टूल्स को यूज करके हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। वो आपके सोशल मीडिया हो सकते हैं, वो आपके वेबसाइट हो सकता है, वो आपका सर्च इंजन हो सकता है। और मुझे लगता है इसके बाद आपका काफी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर हम लोग एजुकेशनल उसकी बात करें तो एजुकेशन में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कोरा। कोरा काफी लोग यूज करते हैं, बट काफी लोग नहीं भी यूज करते। तो कोरा में आपकी प्रेजेंस होना एक बहुत आपको एज देता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन में क्या होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, यंग जनरेशन। अब यंग जनरेशन मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे मिलेगी, वो आपको फेसबुक पे नहीं मिलेंगे, वो आपको जैसे अगर मैं आईएएस की बात करूँ वो आपको लिंक्डइन पे नहीं मिलेंगे। तो आपका वो राइट प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी होता है। और नर्चर आइडिया की प्रायोरिटी पे यही रहता है कि आपको वो राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके आपकी वहाँ पे प्रेजेंस बनाई जाए, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि आपको वहाँ से लीड जनरेट हो, आपकी वहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो। एंड सेकेंडली मुझे लगता है सर, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आईटी बड़ी आईटी कंपनीज में क्या होता है कि आपको वो एक डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक पैकेज दे देते हैं। उसमें होगा कि आपको वो बोलेंगे 2 lakhs आप मंथली पे कर दो, तो उसमें आपको ये इतना मिलेगा, आपको 50 पोस्ट होंगी मंथ की बेसिस पे। तो मुझे यहाँ पे एक चीज नहीं समझ आती कि आप हर बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजी कैसे वर्कआउट कर सकते हो। हर अगर जैसे आपने बोला मुझे ज्वेलरी के लिए, क्लोथिंग के लिए, एजुकेशनल, ये तीनों डिफरेंट डोमेन है, तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्कआउट होगी। आप हर किसी के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं ला सकते हो। तो नर्चर आइडिया में मेरी प्रायोरिटी पे यही रहता है कि मेरी हर किसी को पर्सनलाइज अप्रोच जाए, ताकि उनका बेस्ट रिजल्ट उनको मिल सके। I would personally like to ask you one question. We have been facing a very genuine problem that I would like to share. And the problem is, yes, say for example, I am a person who is not very active on social media. राइट सर। और टाइम जब फॉर मेरे को ज्यादा आता भी नहीं है, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके सर। एन नंबर ऑफ पीपल आके कहते हैं यार सर कोरा में आपका नेगेटिव व्यू है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि मेरे को पता नहीं वो कौन करता है। और कई बार स्टूडेंट्स ने मेरे को शो भी किया है कि सर ये नेगेटिव व्यू है, वहां पे चलो किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम आ रहा होता है। बट जहां तक मेरा यादाश्त है, और इतनी कमजोर भी नहीं है, कि वो हमारे स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। दे आर नॉट अवर स्टूडेंट्स एंड दे कमेंट एंड क्रिटिसाइज ऑन सोशल मीडिया। तो जो हमें हमें कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है वो कोई डेलिबरेटली करवा रहा हो,
इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी चेक्ड अपॉन दिस कि जो डेलिबरेटली करवा रहे, बिकॉज जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हमें नाम तो पता होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, ठीक है, बाय नेम वी कैन नो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे जो स्टूडेंट नहीं है वो भी कोई डेलिबरेटली डलवा देता है, क्योंकि और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक बड़ी जेन्युइन सी जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है कि स्टूडेंट बोलता है सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो लेकिन आपके वो नेगेटिव रिव्यू क्यों है कोरा के ऊपर। तो फिर हमने भी जाके देखा यार वो ऐसे लोगों ने रिव्यू डाले हुए हैं, इसका हमारा उसके साथ कोई लेन देन ही नहीं है। How to deal with all those false information that are being spread against us? इस केस में क्या होता है कि ये नेगेटिव रिव्यूज बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि जैसे अगर मैं आपकी बात करूं और सेकंड कॉम्पिटिटर की बात करूं, तो सेकंड कॉम्पिटिटर हो सकता है मार्केटिंग पे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहता हो, तो उन्होंने उसको ऑल्टरनेट निकाल लिया कि हम किसी पर्सन को देंगे तो वो नेगेटिव आपकी वैसे ही फॉल डाउन कर देगा। तो क्योंकि ये इजी वे है, उनको किसी को पे करना है और वो अपना नेगेटिव आपके बारे में रिव्यू डाल देंगे। तो दैट इज समथिंग कि जो उनका एक बेसिक आइडिया है, और ये चीज आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है क्योंकि उनको अगर जैसे मैं नॉर्मली कोरा पे आंसर लिखूंगी उसके मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जबकि मुझे नेगेटिव रिव्यू करने लिखने के मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मैं किसी की इमेज को डाउन कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर दो सब लोग एक सेकंड में मान लेते हैं, राइट सर, दैट यू आर नॉट रॉन्ग आपको डिकेड्स लग जाते हैं। राइट सर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिव्यू है फ्रेंड्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग ओवर देयर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जरूरी नहीं है जो व्यूज आप पढ़ रहे हैं वो सही हो, वो किसी और ने भी डलवाए हो सकते हैं, जस्ट टू क्रिटिसाइज अनदर पर्सन फॉर वेरियस रीजन, और जेन्युइन एफर्ट के अगेंस्ट भी वो हो सकता है। तो इस केस में एक चीज हम लोग और कर सकते होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चन को या उस पर्सन को रिपोर्ट कर दो। तो हर सोशल मीडिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन हमेशा रहता है, तो रिपोर्ट में आप अपना रीजन मेंशन कर सकते हो। आप उस पर्सन का जो भी आपको अगर कोरा पे जैसे सपोज मिलता है तो कोरा पे आप क्या कर सकते हो, उनका लिंक लेके कोरा की हेल्प जो सपोर्ट सिस्टम रहता है वहाँ पे आप उनको ईमेल करो तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करते हैं। Thank you very much. Moving ahead, I would like to ask you, यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत कुछ सिखा देती है, ये तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। How did the UPSC preparation that you did has helped in taking your own business to a new height, and also how in shaping this venture of Nurture Ideas in particular? अगर मैं जैसे इसकी बात करूँ, सिविल सर्विसेज की बात करूँ कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में मुझे नर्चर आइडिया में कैसे हेल्प किया, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है, अलॉट। मतलब इसका कोई इनफाइनाइट है कि मुझे मेरे पास समझ ही नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कहाँ पे मुझे इतनी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप हर चीज को आपका होराइजन काफी वाइड हो जाता है, आपका हर चीज को जैसे नजरिया देखने का डिफरेंट हो जाता है। आप सामने वाले, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास आप सामने वाले पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझा पाते क्योंकि वो आपका रेडी नहीं होता। बट हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से समझी हुई है, जैसे मैक्सिमम जिसने भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है, कि हम लोग हर चीज को लेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम लोग वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के सेकंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और वही शायद चीजें मैंने भी अपने बिजनेस में भी करी है। बट इट्स नॉट लाइक कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को पर्सन को समझाने के लिए आपको टाइम लगता है, आप अपने पार्ट में सीख लेते हो, बट आपको इम्प्लीमेंट करना और सेकेंडली क्लाइंट को उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनफैक्ट इसी केस में मैंने दो बार तो प्रॉब्लम भी फेस की है। जैसे एक बार हुआ मेरे साथ, प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार एक्चुअली प्रॉब्लम थी। एक बार मैंने अपनी लर्निंग को अच्छा यूज किया, जैसे मंडला आर्ट होती है, मंडला आर्ट जो एमपी एंड राजस्थान में फ्लोर्स एंड वॉल पे होती है, तो मैंने वो आर्ट, मुझे यूपीएससी में मैंने पढ़ा हुआ था एंड मैंने क्या किया, उस आर्ट को ग्राफिक्स पे यूज किया एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए। अब अगर मैंने शायद यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, मैंने वो आर्ट पढ़ा हुआ था कि हाँ लेट्स ट्राई दिस, तो मैंने अपने ग्राफिक डिजाइनर को बोला कि हम लोग ये चीज क्यों नहीं ट्राई करते, ये चीज ट्राई करके देखो, आउटकम काफी अच्छा आएगा। तो अब अगर आपको आप सीख लेते हो, हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, हम लोग इतना पढ़ लेते हैं बट उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप आगे उसको बेटर तरीके से कर पाओगे, तो फिर तो आपकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल वेस्ट है। एंड सेकेंडली मैंने एक बार, जैसे अभी लेबर डे था, तो मैंने लेबर डे पे क्या किया, मैंने अपने क्लाइंट को आइडिया दिया कि हम लोग लेट्स डू वन थिंग कि
हम लोग उनका जैसे टारगेट ऑडियंस उनकी फीमेल थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिब्यूटर करते हैं फीमेल के लिए, है ना, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, काफ़ी अच्छी वो जा सकती है, क्योंकि हम लोग उनको थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अपने क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस समथिंग डिफरेंट, बट क्लाइंट का कुछ और होता है। तो जैसे लेबर डे को अगर हम लोग बात करें, जैसे यूपीएससी में अगर हम लोगों ने लेबर डे पढ़ा था, तो हमें एक चीज सिखाई जाती है कि गूगल पे सर्च कर लो साथ में थोड़ा। मेरी वही स्पेशलिटी है, बोल लो आप, आदत से बन चुकी है अभी कि मैं हर चीज को गूगल पे जरूर सर्च करती हूँ। तो मैंने वही किया उस दिन भी। मैंने वर्कर्स डे, मुझे पता चला कि अच्छा लेबर डे को इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोला जाता है। तो आपको आपको सीखने के बाद आपको उस चीज इंफॉर्मेशन को आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो कुछ यूज की नहीं होती है। यस मोहिनी एंड स्मिथ, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं कि जब टीचिंग क्वालिटी को आप मैच नहीं कर सकोगे तो ऐसा चलो को बदनाम करो, कोई बात नहीं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ऑल्टरनेटिव तो बंदा सोचेगा भी सब लोग बदनाम कर रहे हैं, इसमें कुछ पक्का बढ़िया होगा जो बदनाम करने पे लगे हुए हैं। टेक दैट ऑन अ पॉजिटिव साइड। Moving ahead, I would like to ask another question. I mean, is there anything that you would like to convey to the aspirants who are there? अगर मैं एक्सपीरियंस की सब बात करूं, उनको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि नेवर गिव अप। आप कुछ भी हो जाए, आपको सिचुएशन को डील करना है। जैसे अगर हम लोग यूपीएससी की ही बात करें, यूपीएससी में पर्टिकुलर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि अच्छा मेरा क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ इज एंड, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करूँ, तो जब मैं वहां पे रह रही थी तो मैंने एक न्यूज सुनी कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से डील नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भी हम लोग बात करें सर, उसमें भी हमारा बहुत लोगों को और भी कंट्रीब्यूशन रहता है कि अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और फैमिली में भी, फैमिली थैंकफुली मेरे पापा मम्मा, मतलब मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हर मोमेंट पे मुझे। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम सब फैमिलीज में आती हैं। दे ऑल्सो सजेस्टेड मी कि 9 to 6 आप जॉब कर लो, आप बैंक की जॉब ज्वाइन करो, आप ऐसे करो, बट आपको उस सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक आपको उसकी वजह से अपने को डिप्रेशन में लेके जाना है। आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। और सेकंड होता है कि अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है, जैसे मेंटर होते हैं आपके, जैसे आप अपने टीचर, जैसे अगर मैं आपके स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आपके स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ा एज है कि वो आपसे बात कर सकते हैं। तो आप अपने टीचर से हमेशा हेल्प लो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आपको उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो, आप उनसे पढ़ रहे हो तो उनको आपकी बहुत अच्छे से थॉट प्रोसेस पता होता है। तो आप उनसे बात करो, आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है। थर्डली क्या होता है, आपके पास अपना फ्रेंड सर्कल होता है, आप उसको क्यों नहीं यूज करते? वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। इनकेस कभी होता है, जैसे मैं भी अगर अपनी बात करूँ सर, तो मेरे पास भी होता है कि मैं अपनी फैमिली से कभी कुछ नहीं डिस्कस कर सकती। तो मेरे पास, जैसे अभी मैं अपने फ्लैट में जिनके साथ रह रही हूँ, निधि दी, या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे गौरव, एलिना, तो कुछ लोग हैं जिनसे मैं हर टाइम पे कुछ भी कभी भी कॉल करके डिस्कस कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स होना भी बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए आपको भी हमेशा फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए ज़रूरी रहना पड़ता है। Yes, definitely. Yes, Mandeep, definitely you are most welcome. With our commitment and your commitment, both the commitments matching the hard work that we need from your side, the dedication that we would be showing to for the success of your career, definitely you will be able to clear the exam. Friends, those who are watching, Kim can you please share your mail ID so that if anyone is interested to have a good work done by you, so that these people can approach you, mail ID or any other way that they can be in touch with you? अगर वो वैसे सर मेरे लिए गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे, कैमी गर्ल बहुत चीजें आ जाती हैं, तो उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो उनको जस्ट जाके गूगल पे सर्च करना है कैमी गर्ल। आपको मेरे सोशल मीडिया, आपको मेरी ईमेल आईडी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट सेकेंडली ऑन सीरियस नोट, मेरी ईमेल आईडी है गर्ग कैमी, GARGCAMY1111@gmail.com। मैं आपको बाद में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगी, आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी कर सकते हो। Definitely. Okay.
Thank you very much, Cami, for giving us some time so that you can share your valuable ideas with others. Friends, one thing is very much sure. कुछ लोग होते हैं कि चलो हम बोलते हैं इधर देखा बहुत दुनिया देखी, सिंपल भाषा में बोलते हैं धक्के खा के सीख लेना. अनदर थिंग, समझदार इंसान क्या बोलते हैं, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो, खुद धक्के खाने की जरूरत नहीं. The people we are getting at the platform are experienced in their own field. They may not have succeeded in one area, but definitely they are making a good mark in the another area also. तो कहने का मतलब, अगर एक दरवाजा बंद होता है लाइफ में, multiple other doors they are opening up, and opportunities are lying ahead of you. As said, कैमी ने बोला कि there was some student who committed suicide. फिर क्या हो जाएगा? UPSC is one of the important aspect of life. That is not the end of life. There are multiple things which are there, multiple expectations that are there. The expectations are from you. The expectations are from the friends, from the family members, from mother, father, brother, sister, everyone. From the relatives also. और expectation unwanted लोगों से भी होती है जिनका कुछ लिंक नहीं होता. एक ही solution है ऐसे लोगों को जवाब देने का, that is hard work and success. That is the only alternative that is available. आपके पास और कुछ नहीं है. At least hard work is there. For example, she learned almost everything regarding the digital marketing without even spending a single rupee. Another friend spent 30,000 rupees, took it 3 months, and then also not that much capable. तो यहाँ पे एक आपका डेडिकेशन, आपकी एक कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और कहां भी फील्ड में जाएंगे, और डेडिकेशन एंड कमिटमेंट विल डेफिनेटली बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको वेलकम करने के लिए, so that you are definitely a success. So wish, Kami from Muluka IS side, we are definitely wishing you a great career, and will definitely love to have you once again on the platform after another 1 year or before that, so that you can share more of your experience, ki how in a very short span of time you have definitely reached a very good heights. Thank you. Thank you for having me, sir. Thank you.